14th of August 1947 by my father. The strongest all India distribution network. South Indian producers, Gemini was the first producer whose film Chandralekha we distributed all over India. And that started the entry of the South producers into the Hindi field. The distribution network was a big support for our production organization, and we could encourage new talent, artists and technicians into our films, which no other producer could do, because ours was the only distribution organization all over India. Thank you. Thank you so much, sir. So what is that one thing जो कि दिमाग में रख के फिल्में बनाई जाती हैं कि वो जो values हैं, वो जो roots हैं, उनसे जुड़ी फिल्में अब तक बन रही हैं, and everything is so intact till date. वो मेरे फादर का प्रिंसिपल था कि जो भी फिल्म हम प्रोड्यूस करेंगे वो होलसम एंटरटेनमेंट फॉर द फैमिली रहेगा. वही प्रिंसिपल आज तक फॉलो किया. Thank you so much, sir, for sharing that. बहुत बहुत धन्यवाद. अजीत sir, this one's for you. आपसे मैं थोड़ा सा ना I should have told him, मैं थोड़ा सा सर अंदर की बात निकलवाने वाला हूँ. सूरज सर की 7वीं फिल्म है. 75 साल राजश्री को हो चुके हैं. 60वीं फिल्म पूरे प्रोडक्शन हाउस की है. सर टेल अस समथिंग अबाउट सूरज सर एज अ किड या खुद सर. वो शुरुआत जब हुई थी सर, थोड़ा सर प्लीज you'll have to spill the beans today. Looking at him, बता दूं. Suraj has always been a very quiet person from the childhood only, and he has seen the family values. He has seen the atmosphere in the family, the traditions, and I think he is following those. Right, I am sure he is doing that. So we just saw the trailer of Unchai. What do you have to say about this? You just, we witnessed something extraordinary. Excellent. Thank you, sir. Thank you so much. The man has spoken, of course. Natasha, this one's for you. Please tell us, every time you've produced something, you've been there. किसी भी चीज को लेके वो boundless ही होता है. It's always boundless. You've always introduced brilliant talent, brilliant stories. So how was it about this journey? If you had to, if you have to sum it up, how would you do that? Unchai and Boundless, and you, of course. It's been such a privilege to be able to work with a director like Suraj ji, to be able to learn from this sort of veteran cast, I was on set in Delhi, and it's so inspiring to see people who've achieved so much in their career still push themselves every day with so much passion. Like Suraj ji said, they're still reinventing themselves. They're still looking to achieve their new uchais. So I think as a young producer, it's very inspiring to see that, the journey never ends. And so at Boundless, we say we're telling stories for a new India. So, just the way I think this film is going to be a super hit, because this actually, I think, is what a new audience wants. We don't want some fancy film. We want to see films that make us feel good, that sort of remind us about our own family values. So I hope to make a lot more films like this one, and thank you so much for letting me be a part of this. Wow. Thank you so much for sharing that so beautifully. Mahavir sir, आपसे जानना चाहूँगा, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, मॉम आई हुई हैं यहाँ सबसे पहले. What was the reason कि इस यहाँ पे लाना था उनको, कि आज you wanted to share this with her? जी, मैं खड़ा हो जाऊँ? Sir, please. मैं ये कहना चाह रहा था आज कि देखिए, आज मैं बॉम्बे में हूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और उसका सारा क्रेडिट अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ आज, तो मैं राजश्री फैमिली को, सूरज जी को देना चाहता हूँ. अगर मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो हम आपकी कौन की वजह से आया हूँ. मैं असिस्ट करने आया था 2000 के आसपास, 20 साल पहले सूरज जी को विवाह में. मैं असिस्ट तो नहीं कर पाया, फिर देखिए डेस्टिनी और आप लोगों का प्यार, मेरे को ऊंचाई में जुड़ने का मौका मिला. तो आज मेरी ज़िंदगी का बहुत इमोशनल डे है, और मैं दिल से थैंक यू आप लोगों को कहना चाहूँगा. और मैं चाहता था इसी वजह से मॉम आए, क्योंकि मैं कितनी भी फिल्में बना लूँ और कितनी भी फिल्मों से जुड़ जाऊँ, पर वो सब बोनस है, क्योंकि मेरी ऑस्कर मुझे मिल चुकी है ऊंचाई के साथ.
एक बात और, मैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब के दिल में जो चल रही है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। 1 मिनट और लूँगा खाली। यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं जो हमारे ग्रेटेस्ट टैलेंट ऑफ द कंट्री हैं, वो मीडिया के फ्रेंड्स, बाकी सारे फ्रेंड्स, सारे कास्ट एंड क्रू, सर हम सब कहना चाहते हैं आज राष्ट्रीय फैमिली को, अजीत बाबू को, कमल बाबू को, राज बाबू को, सूरज जी को, पूरी जनरेशन्स को कि 75 सालों से आपने जो हमें प्यार दिया है अपनी फिल्मों के जरिए, जो आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लाई है, जो हमारे अंदर वैल्यूज़ लाए, जो अच्छाइयाँ लाई है, मतलब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्रीय का हमारी सबकी लाइफ में। मैं उसके लिए हम सब के बिहाफ पे आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक छोटी सी चीज़, हम सब आज राष्ट्रीय फैमिली के लिए 75 सालों से आप लोगों ने जितना इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन है हम लोग सब करना चाहते हैं, और वो है एक छोटा सा हम लोग जो कर सकते हैं, हमारा प्यार और रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन बनती है। हम लोग सब स्टैंडिंग ओवेशन राष्ट्रीय के लिए करना चाहेंगे। पहला लॉन्च है सर, इवेंट है, तो यहाँ सबकी इच्छा है दैट दे वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। सो वो साथ में कह रहे थे सब लोग कि एक बार गा लेते हम लोग। तो अरे सर उसको गाना वाना छोड़ दीजिए, हो गया, अब जन्मदिन हो गया, 80 वर्ष हो गए, कितनी बार गाएंगे गाना? सर वी वुड लव टू सिंग इट फॉर अनदर 100 years सर। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, कैन वी ऑल डू दैट? राइट। सो सर पहला सवाल आप ही से है, करियर की जिस ऊंचाई पे इस वक्त आप हैं, वहां से जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं और आगे सर किस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू नो दैट। सर ईश्वर की कृपा रही है, माँ बाबू जी का स्नेह प्यार रहा है, देश की जनता का स्नेह प्यार रहा है, इससे ज्यादा उम्मीद अब क्या हम कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी इनके आशीर्वाद से हम हैं, उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग। यहाँ पे दोस्ती की बात हो रही है, फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो आपके दोस्तों से भी बात कर ली जाए। अनुपम सर, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। आई विल डेफिनेटली आस्क यू कि हाउ वाज इट वर्किंग विद दिस स्टेलर कास्ट, लेकिन उससे पहले सर मुझे पता लगा यू लिटरली किडनैप्ड बमन ईरानी साहब फॉर द शूट ऑफ दिस फिल्म। क्लैपर बॉय आपने प्ले किया है सर, मतलब बहुत मेहनत की गई है, प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। पहली बात तो ये मेरा फिल्मी जन्म जो है वो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में हुआ है। मेरी पहली फिल्म जो महावीर जी आप नहीं कर पाए, मैंने कर लिया 1984 में। सारांश में मुझे मेरा फिल्मी करियर, आई ओ माई करियर सक्सेस अप्स एंड डाउन्स टू राष्ट्रीय फिल्म्स, एंड आई एम वेरी थैंकफुल दे गेव मी अ कैरेक्टर ऑफ बीवी प्रधान, और वैसा बनने के लिए मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी। And Suraj was an assistant on that set. He was the last assistant on that set. He was 5th assistant. और ये प्रोड्यूसर के पुत्र थे और इनको कोई काम नहीं दे रहा था। तो और मैं मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे लगा ये बंदा जो पीछे बैठा है इसको काम देता हूँ। मैंने कहा इधर आओ, तो जाओ मेरे ऊपर से डायलॉग फाइल लेकर आओ। तो ये दौड़े दौड़े गए, इनको बड़ी खुशी हुई कि मुझे किसी ने काम दिया है। और उसके बाद मैंने 4 फिल्में इनके साथ की हैं। फिर जब इन्होंने मुझे ये फिल्म टू स्पेसिफिकली आंसर, आई कैन डू अ होल डे स्पीच ऑन राजश्री प्रोडक्शंस एंड व्हाट इज माय एसोसिएशन, बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो, एंड बिकॉज नॉट मेनी पीपल फ्रॉम द राजश्री प्रोडक्शन वांट टू टेल द वर्ल्ड व्हाट आर देयर अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश में जिस दिन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, उन्होंने कैसे ताराचंद जी ने सोच लिया कि उस दिन अपनी कंपनी हमें लॉन्च करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पहली बात तो आप पूरी जगह मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहूँगा ये फैलाइए कि 75 साल में एक दृष्टिकोण से लेकर फिल्म बनाना आज की दुनिया में, और ऐसी कामयाबी के साथ, उससे ये महसूस होता है कि जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो कभी ख़त्म नहीं होती, कितनी भी तरक्की कर लें हम, कितनी भी आगे जाते हैं। और एज यू सेड, थैंक यू टू देम। जब सूरज जी ने मुझे मैं भूलता नहीं, सूरज ने मुझे जब कहानी सुनाई तो मैंने कहा कि फैंटास्टिक, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई विल गेट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी वर्किंग विद बच्चन साहब। और मैंने कहा कौन कौन आ रहे हैं, कहते वो आप और एक बमन के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, पर बमन की कुछ डेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है।
मैंने बमन जी के 3-4 मन में 3-4 चपेड़े मारे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। और पर तो मैं जैसी गाड़ी में बैठा, मैंने बमन को फ़ोन लगाया और मैंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, उन शब्दों का मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता हूँ, मैंने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और ये मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा मेरे बारे में, मैंने कहा तुम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, दिस इज हिज विश एंड यू आर पार्ट ऑफ हिज विश एंड यू हैव टू डू दैट फिल्म। और 15 मिनट के बाद अब बमन की मुझे जो रेस्टलेसनेस सुनाई दी कि फ़ोन रख के तो मैं सूरज को फ़ोन करूं। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और इन्होंने सूरज को फ़ोन किया, आई एम वेरी प्राउड एंड फॉर्चुनेट जो इनके साथ मुझे एक्सपीरियंस मिला बमन के साथ। और आपको अमित जी मेरे से गुस्सा हो जाते हैं, मैं उनकी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, बट अमित जी it's an honor to be standing sharing from आखिरी रास्ता till today, to be sharing screen space with you. There is so much to learn from you. But Rajshri has been a home. और जब भी मुझे थोड़ा सा मन उदास होता है या मैं अपने आप को प्योरिटी के दौर से गुजारना चाहता हूँ, मैं वर्ली में राजश्री ऑफिस चला जाता हूँ और ऐसा लगता है मंदिर में चला गया और सब अच्छा महसूस होता है। थैंक यू सो मच। मैं बच्चन साहब से वापस पूछूंगा सवाल, लेकिन उससे पहले बमन सर, इफ यू हैड टू टॉक अबाउट दिस अमेजिंग ट्रियो हियर, you, बच्चन साहब, खेर साहब, and we all know that you have this in-depth knowledge of filmmaking or scripting. What made you choose ऊंचाई, sir? 3 dialogues जो मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको। I wish मैं आपको बोल सकता कि मेरा पहला सेंटेंस क्या था बमन को, पर आपने सबने इमेजिन कर लिया है। और फैक्ट ये है कि he is right and there are 2-3 things that come out of this. पहली बात तो ये है कि the moment he said, पहले तो गाली सुनाई प्यार से, डायलॉग गाली ही थी ना, और क्या था? मेजर गाली थी, तो जो राजश्री फिल्म में सुनाई नहीं देती। और actually that phone call did not last 15 minutes. It lasted 20 seconds. मतलब फोन रख दीजिए। Can you increase their volume? हाँ जी? Their volume. Their volume. हाँ, अब यहाँ से होगा। हाँ, तो I called up Suraj ji and then I called him back. That conversation lasted. But what is important in all of this is, I was going through a very bad phase. I was going through a time where I had lost a lot of people. I was not in the right frame of mind. My mother was not well and all that. And he said, this is going to be, what was the thing you said? It is going to be the greatest history. I said, it is spiritual history. Because the experience I've had working with this man and the energy that he emanates from every word he says, how he says it, how he means it, the truthfulness with which he says it. You just stand next to him, you feel you're a better human being just by being in his presence. And I'm not saying this. People have said some wonderful things. Every morning, we come to the van and we chat. And I say to myself, and I thank you, Mr. K, for abusing. You can abuse 10 times more. You're a friend. Bolo, isme kya hai? Main stupid tha. But the fact is that only a great actor will be so large-hearted to invite an actor whom I hope he loves and respects. Otherwise, ठीक है, किसी को भी लेके आओ. No, he means well for other actors. He supports other actors. From Khosla, he supported me from that day. And most important, he did what was right for the film. And I would like to believe, if I had said so myself. मेरे जहन में ये था कि सूरज की इच्छा है और ये इच्छा जरूर पूरी करना मेरा था। That's it. From now on, everything सूरज की इच्छा। और मैं इसलिए भी कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये एक्सपीरियंस से आप गुजरोगे, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। And you are right. From this moment, watching the trailer, the two of us are crying like two little school children sitting over there. That's what friendship is about. This is what a movie like this does for us. And I hope it does it for all of you and your families. I pray that all of you feel a cleansing feel in your bodies and your souls thanks to this film.
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बच्चन साहब के लिए अगला सवाल है मेरे पास कि सर देयर इज दिस सेइंग, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो अभी आज के दौर में सर व्हाट डू यू फील, ये कितना इम्प्लाई करता है और कितना ये चीजें चेंज हो गई हैं इंडस्ट्री में भी और रियल लाइफ में भी? A friend should never be in need. I just believe in if there is ever an occasion when there is need, I would like to step up and do the best I can for him. Right. So, do you feel, sir, is it true that Abhishek Bhai wanted you to do this film? Like he was after your life, that you have to do Unchai, is what we've been told, sir. Yes. So, how did that happen, sir? Like एक बार उन्होंने बोला और आपने कर लिया? Was it सूरज sir and of course wholesome entertainment जो राजश्री के साथ चलता है वो टैग था? What was it, sir? तो बेटा जब बाप की उम्र का हो जाता है या तो उसके नजदीक हो जाता है तो उसके जूते पहनना शुरू कर देता है, और एक बार बेटे ने बोल दिया तो उसकी बात मान लिया। सूरज सर, आप प्लीज बताइए, just to add to this question, कि how was your equation with of course बच्चन साहब, खेर साहब and Baman sir on shoot? Actually, I have to say that बहुत साल पहले मैं सर को स्क्रिप्ट सुनाने गया था, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। तो मुझे अभी भी याद है, सर जो सुनते हैं ना, सर यही है बट आई कैन से, सर सुनते हैं अपलक। अपलक मीन्स ऐसे नजरें गाड़ के, एंड यू कैन नॉट फेस दैट गेज, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। तो फिर जब ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी तो मैंने सर को मैसेज किया, तो सर ने मुझे, अभी भी मुझे याद है, वेडनेसडे था, 4 बजे का टाइम दिया था जूम पे, कोविड का टाइम। तो 2 एंजाइटी मेडिसिन लेकर के मैं बैठा। इट्स नॉट इजी टू फेस सर, बट देन ओवर द ईयर, ओवर द टाइम दैट वी स्पेंट ऑन दिस मूवी, आई कैन से दैट सर इज द easiest actor to work with, is the easiest actor. Sometimes I tell sir that हम लोग तो इतने जूनियर हैं, हम अपने बोलते ये करना है, मेरा फीलिंग ये है, you can see through every junior, but yet why do you hear so much? But that's why sir is sir, and I have to say that I of course enjoyed with sir on the set, but I enjoyed more with him in his vanity van. Okay. Because when you meet sir in the vanity van, he tells you about poetry, he tells you about life, he tells about filmmaking, he teaches us. But on set, he only listens. I think that is the greatest of sir. And with Anupam sir, he's been like a father figure. I'm just sharing. मैं सर से मिलने जा रहा था जनक फर्स्ट टाइम, स्क्रिप्ट सुनानी है, फिर मैं नर्वस, फिर मैंने अनुपम सर को फ़ोन किया, तो अनुपम सर ने वहाँ से मुझे गणेश वंदना भेजी साथ में कि ये सुन के जाओ। सो फॉर मी ही इज़ बीन लाइक अ फादर. And Boman sir has taught me a very important part of filmmaking, which has really lifted me. You remember Boman sir? Boman sir told me that सुबह उठता हूँ तो मेरा कैरेक्टर मुझे बोलता है कि क्या करना चाहिए. That has given me a different light, because I have to get up and I have to ask the character, it goes correct, rather than thinking this is the camera angle, this sells, nothing matters. So thank you Boman sir. Thank you so much, sir, for sharing that. Sarika ma'am, this one's for you. Coming back, to राजश्री परिवार, एक बार फिर से वापसी हो रही है इस फिल्म के साथ, और बहुत बखूबी सब कुछ काम किया है यहाँ. क्या बोलना चाहेंगे इस जर्नी के ऊपर, और कितनी चीजें बदल गई हैं तब जब शुरुआत की थी और आज? चीज़ें बहुत बदल गई हैं, मगर मुझे लगता है राजश्री नहीं बदली है. It still has the same love, the same feeling of family. एक तरह से जो बोलते हैं ना, घर वापसी है मेरी. It's so interesting. This के 75th year है और अभी भी वो जनरेशन टू जनरेशन नई, अब फिल्म दूसरे महीने शुरू हो रही है. This is not just something we can take lightly. This is not, बोलते हैं कहीं पे कोई ऑफिस है जो चल रहा है 75 years से, कभी कुछ कर दिया कुछ. It's not like that. अभी भी आप जाएंगे ऑफिस में, वही ऑफिस है, उतनी ही एक्टिविटी है, उतना ही पैशन है. That is something amazing. So that is beautiful. And personally I think मुझे लगता है हमारे करियर में फिल्में कुछ अच्छी नहीं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन कोई फिल्म ऐसी होती है जो एक ब्लेसिंग की तरह फील होती है. और
आप जब वो फिल्म शुरू करते हैं तो लगता नहीं है कि ये दिस विल टर्न इनटू दैट, बट दिस फिल्म इज लाइक दैट फॉर मी, बिकॉज टू बिगिन विद बहुत खुशी थी कि मैं राष्ट्रीय में वापस इतने सालों बाद आ रही हूँ. फिर काम शुरू हुआ, सूरज जी से मुलाकात हुई, एंड लेट मी जस्ट से दिस, आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से बोला, आई कांट इम्प्रूव ऑन दैट, बट टू नो सूरज जी और उनके साथ काम करना, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है. अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मुझे लगता है आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है. एंड हर लेवल पे एज अ डायरेक्टर, जैसे बमन जी ने कहा, ये मेरे करियर में कभी नहीं हुआ कि हर रोज़ डायरेक्टर आके 5 मिनट सुबह वैनिटी में मुझे बताएं कि हम ये सीन करें, जबकि मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, वो भी मुझे बोल सकते हैं. इवन अगर कोई सीन आधा रह गया है और वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो आकर हमें बताते थे कि ये हो रहा है. फिर मैंने बहुत सोचा कि सूरज जी ऐसा क्यों करते हैं एवरी डे. आई थिंक समवेयर हम जब घर चले जाते हैं सब, अनुपम जी बन जाते हैं, नीना जी बन जाती हैं, बमन जी हो जाता है, सारिका बन. आई थिंक इट्स इमोशनल कंटिन्यूटी जो वो हमारी फिर से पकड़ लेते हैं सुबह के, कि अब आप माला हैं तो मैं आपसे एक बार फिर आपको ले आता हूँ. एंड दिस इज सो अमेजिंग. एंड ऑन द सेट सूरज जी इज ब्रिलियंट एज अ डायरेक्टर. 2-3 ऐसी जगहें थी जहाँ पर मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, उनकी सपोर्ट की एज अ डायरेक्टर. उनमें कोई ईगो नहीं है, उनका दिमाग ऐसा नहीं है, लकीर होती ना पत्थर की लकीर. उन्होंने इतना मिलजुल के किया है उस वक्त काम की. अगर ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता, मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ सीन्स कर पाती जैसे मैंने किए हैं. एंड उसके लिए थैंक यू वेरी मच सूरज जी, बिकॉज विदाउट अ डायरेक्टर आई थिंक एक्टर्स कैन रियली नॉट डू मच. वी कैन नॉट राइज अबव अ बैड डायरेक्टर और अ बैड स्क्रिप्ट. सो थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ सूरज जी एज अ पर्सन इज सो गुड. When he likes your shot, हम सब ने देखा है, करेक्ट. और जब उनको लगता है एकदम एक बच्चे की जो खुशी होती है, रियली आप अगर सेट पे होते तो आपको समझ आता मैं क्या बोलती हूँ, बहुत खुश हो जाते हैं. ऑफकोर्स आप लोगों ने वो वीडियो भी बनाया था, उनका याद है. सो आई थिंक फॉर मी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो हर चीज़ का जगह पे बैठना जो था. And I just want to say one more thing, because I'm not on social media. Today I want to use this and thank you Anupam ji, thank you Baman ji, thank you Neena ji, and Kiran ji se bhi thank you kahiyega for the poster release. मैं हूँ नहीं social media में, I can't give back that love. But you know that. So thank you very much. And इतने अच्छे artist, मतलब बच्चन सर के साथ मैंने पहले भी काम किया है, लेकिन हर बार जब मैं काम करती हूँ मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट और एडमिरेशन शायद छोटा वर्ड है, रिस्पेक्ट का ही थोड़ा सा ज़्यादा अगर कर दें. इट्स अनबिलीवेबल एक्चुअली. यू कैन जस्ट वॉच हिम ऑन द सेट एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड अनुपम जी, बमन जी, नीना जी, they are so wonderful as actors. We all know their talent, we all know how wonderful they are. They can only take the script 2 notches higher. So this has been, putting all this together, such a blessing to be in this. And this is just as an actor. And I'm very happy when I do a good film. And I'm very, very happy. So thank you very much. Thank you so much, ma'am, for sharing all that with us. And what we are witnessing here is unbelievable, because emotions के इतना उतार चढ़ाव है यहाँ पर. नीना मैम would like to ask you कि वो जो केमिस्ट्री दिख रही है बमन सर के साथ या वो पूरी टीम के साथ, that's unbelievable. क्या बोलना चाहेंगे? और ऐसे इवेंट्स पे जिस तरह से यहाँ इमोशनल हो रखे हैं हम सब, और अभी जब हमने वो ट्रेलर देखा, इस जर्नी को कैसे सम अप करेंगे? आज जो राजश्री परिवार के लोग यहाँ आए थे हमसे पहले, और जो प्रोड्यूसर्स भी साथ में आए थे, और जो बातचीत हुई, में तो आँख में आंसू आ गए. तो आज का दिन, इस वक्त जो मैं यहाँ हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कहना चाहती. जो भी कहूँगी छोटे मुँह बड़ी बात होगी. मैं सिर्फ सुनना चाहूँगी. थैंक यू.
सो मच मैम। कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया आपने यहाँ पे। आई नो आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे, लेकिन वन लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर अमिताभ बच्चन सर। एक आखिरी चीज, सूरज सर ने आपके बारे में इतना सब कुछ बताया हमें। हाउ डू यू सी योर एसोसिएशन विद हिम एंड ऑफ कोर्स राजश्री ओवर द डेकेड्स सर, क्या कहेंगे? सर ये मेरा पहला एसोसिएशन तो है नहीं। मेरे शुरुआती जीवन में बहुत ही पहले कुछ फिल्मों में उनके साथ काम किया था, और केवल मैं ही नहीं, मेरे परिवार के 2 और सदस्य जिन्होंने राजश्री के साथ काम किया है, जया ने काम किया है, अभिषेक ने काम किया है, और उन सब से जिस दिन भी मैं काम करता था ऊंचाई पे, तो रोज जब शाम को आते थे तो बस बधाई के पुल और तारीफों के पुल जो है वो बांधते थे राजश्री के बारे में, राजश्री प्रोडक्शंस के बारे में। और जब मैं वापस काम पे जाता था तो मैं समझ जाता था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सूरज जी ने चुना मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए, अवसर दिया कि इतने बड़े दिग्गजों के साथ मुझे खड़ा कर दिया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे अवसर जो है हमारी उम्र में आकर के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिल रहे हैं। तो राजश्री प्रोडक्शंस को मैं धन्यवाद दूंगा और हमारे सह कलाकारों को कि उन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद आपको सर। हमारे बहुत ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा तो फिर बाद में फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा। एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। और फिल्म की खासियत यह है कि फिल्म एक बार आपने शुरू कर दी तो आप 1 सेकंड के लिए भी बीच में उठ नहीं सकते, क्योंकि इसका हर एक डायलॉग जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पास से और या आने वाली नेक्स्ट जो स्क्रीन है उससे कनेक्ट करता है। तो आप कहीं उठ नहीं पाओगे बीच में, आपको फिल्म पूरी देखकर ही उठना होगा। क्या बात है। तो बेसिकली हिटलर का रोल इन्होंने गोविंद जी ने किया है। गोविंद जी एक बहुत 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 बड़े एक्टर हैं। बिल्कुल। और मैं सच में अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उन्होंने ये ऑफर लिया और इस फिल्म को किया। जिस तरह से उन्होंने हिटलर के किरदार को निभाया है वो सच में हमें, जब हमने फाइनल फिल्म देखी तो हमें ऐसा लग रहा था कि फिल्म नहीं है, सच में हिटलर कहीं से आ गया है। सच में फिल्म असली में हिटलर आ गया है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी फिल्म है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को पसंद आएगी और खूब कमाएगी। बिल्कुल, एक प्रोड्यूसर तो यही चाहेगा कि खूब कमाएगी और बिल्कुल कमाएगी। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। थैंक यू सो मच सर। सर आपके पास आना चाहेंगे। लोकेश जी आप बताइए, आपने तो बहुत सारी फिल्म्स खुद भी करी हैं, इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है? मैम, जब कभी पोस्टर लॉन्च होता है तो पोस्टर को सबसे पहले तो जो हमारे सबसे पहले जो हमारे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और जो पूरी टीम है और अपने जो मीडिया वाले हैं, त्रिलोका मीडिया, इन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। तो मैं ये कहना चाह रहा था मैम, जब पोस्टर लॉन्च होता है तो पोस्टर लॉन्च को देख के ऐसे खुशी होती है जैसे किसी आदमी की शादी ना हो रही हो और इसका रिश्ता हो गया हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे की रस्म है, जो आगे शूटिंग होनी है, जो